एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बायोवर्ड्स। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th आईसीएसई का पहला चैप्टर, वो है सेल। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि तुम कैसे बने हो? चलो एक एग्जाम्पल लो और कहो कि एक घर कैसे बनता है। द मेन एलिमेंट और द बेसिक यूनिट टू बिल्ड अ हाउस इज ब्रिक, राइट? वैसे ही हम भी एक तरह के ईंट से बने हैं और वो है सेल। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो लेट्स गेट टू द चैप्टर। As we have studied before, cell is the structural and functional unit of life. वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो सभी एक टाइनी स्ट्रक्चर से बने हुए हैं और वो है सेल। Cell are also called the building blocks of life. Now let us learn about the discovery of the cell. First is Robert Hooke in 1665. He coined the term cell. He observed a thin slice of cork under a compound microscope and saw tiny compartment-like structures. Those compartments were looking like honeycombs. So he called these structures as cells. In Latin word, it is cellula, means they look like small rooms. He only saw dead cell walls. So this is the diagram of a compound microscope. Next is Antoine van Leeuwenhoek. He was first to observe living cells under a simple microscope. He discovered tiny moving organisms in pond water, which he called animalcules. Now we call them as protozoa or bacteria. He also observed RBCs and sperm cells. RBC is red blood cell and sperm cells are male reproductive cells that carries genetic material. So this is the simple microscope. अब नेक्स्ट है शेल्डन एंड स्वान। शेल्डन एक बोटनिस्ट है एंड स्वान एक zoologist है। They showed that plants and animals are made up of cells. Together, एक साथ मिलके they formulated the cell theory. But they were unsuccessful in explaining how cells are formed. सेल कैसे बनते हैं उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर एंट्री होती है किसकी? रुडोल्फ विर्चा in 1855. He added to the cell theory by stating that omnis cellula is cellula, means all cell arise from pre-existing cells. We will know more about this in cell division, and let us move forward to the next topic. Next topic has the cell theory. There are three theories based on cell. So the first theory is all cell organelles are composed of cells एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल में ही बने हुए हैं, सेल से ही बने हुए हैं और वो सेल की ही प्रोडक्ट हैं। एंड सेकेंड थ्योरी इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड थर्ड नंबर इज विच वॉज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चाउ, इट इज ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से सेल हैं उन्हीं से ही एक नया सेल बनता है। Let us now see some important properties of living cells. First property is cell is so small that is not visible to the naked eyes. Cell इतना छोटा है कि वो naked eye से नहीं दिखता. We need microscope to see a cell. There are different type of cell जो कि shape और size से vary करते हैं उनके specific function के हिसाब से. Nerve cells goes under one of the longest cells. Function is to transmit electrical and chemical signals throughout the body. Another property of a cell is all living cells exhibit certain basic properties like respiration, growth and metabolism. Cells with different shapes and sizes. पहला है RBCs, वो राउंड होते हैं और बाइकॉनकेव होते हैं। सेकेंड है WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल, वो अमोइड बॉय शेप के होते हैं यानी कि उनकी कोई शेप ही नहीं होती है, मीन्स दे कैन चेंज देयर शेप। फिर आते हैं कॉलमनर एपिथेलियल सेल, वो लॉन्ग होते हैं और नेरो होते हैं। दिस सेल्स आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन्स। फिर आते हैं हमारे नर्व सेल्स, वो ब्रांच्ड भी होते हैं और लॉन्ग भी होते हैं। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उनका डायमीटर है 0.1 माइक्रोमीटर। चलो अब चलते हैं सेल की क्लासिफिकेशन की तरफ। पहला है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड वन इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। पहले हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। यूनि यानी कि एक, सिंगल, सेल्युलर मीन्स सेल, वो सिंगल सेल से बने हुए हैं और ये सिंगल सेल से ही अपनी लाइफ के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वो सेल्फ सफिशिएंट कहलाते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली कॉस्मोपॉलिटन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्मोपॉलिटन? कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम सॉइल एंड वाटर टू एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सी, they present everywhere. Unicellular organisms are mostly microscopic and they reproduce asexually by binary fission, budding, and spore formation. In binary fissions, mother cell will divide into two daughter cells, and in budding, a small bud will arise from the body and will detach after maturing. And in spore formation, it happens during harsh environmental conditions. They form spore and burst in extreme conditions. Kingdom Monera and Protista and some fungi are unicellular organisms. Next is multicellular organisms. What do you mean by multicellular? Means they have two or more cells in their body. They are made up of two or more cells. Multiple cells work together to perform life functions. These are specialized and organized into tissues, organs and organ systems. मल्टीसेल्यूलर ग्रुप बन के एक टिश्यू बनते हैं, फिर एक ऑर्गन और फिर एक ऑर्गन सिस्टम। देयर इज वन अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ अ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज दे शो डिवीजन ऑफ लेबर because they are composed of many specialized cells, each performing a specific functions which allow for greater efficiency and carrying out complex bodily processes compared to a single cell performing all functions. इसका मतलब ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को डिफरेंट फंक्शंस के लिए अपॉइंट किया गया है। और यहाँ देखें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस को मेंटेन करता है, परफॉर्म करता है। एंड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आर सेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल्स जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं उनका डिफरेंट फंक्शन होता है और जो सेल्स स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं उनका एक डिफरेंट फंक्शन है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। Processes like karyokinesis and cytokinesis occur to divide a cell. Multicellular organisms mostly reproduce sexually by gametes. Male gamete and female gamete undergoes fusion or fertilization to form a zygote. Some multicellular organisms also reproduce asexually, like fragmentation in starfish. Multicellular organisms range from simple forms like sponges to highly complex beings like humans. Organisms of kingdom Animalia, Plantae, fungi and some algae like kelp, a seaweed comes under multicellular organisms. Multicellular organisms are classified to another group based on the cellular complexity or organization, and those are prokaryotes and eukaryotes. फर्स्ट इज साइज ऑफ सेल। प्रोकैरियोट्स में सेल का साइज छोटा होता है और यूकैरियोट्स में सेल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और यहाँ पे यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स cell wall is present and is made up of peptidoglycan, but in eukaryotes cell wall is present in plant cells and it is composed of cellulose.
Genetic material present in prokaryotes as nucleoid, but in eukaryotes, genetic material present as DNA. So this is the structure of prokaryotic and eukaryotic cell. Let us zoom into prokaryotic cell. So ये है एक बैक्टीरिया या फिर एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर। पहले तो एक कैप्सूल प्रेजेंट है जो कि कवर कर रहा है, उसके अंदर है एक सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म में वेरियस राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। A flagellum is present which helps in motility, and pilus are present which helps in reproduction or attachment to another uh, prokaryote for reproduction or genetic material exchange. ये था प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। दिस इज द यूकैरियोटिक सेल एंड दिस इज एन एनिमल सेल। तो चलो ये बताओ, हाउ डू आई नो कि ये एक एनिमल सेल है। सो द बेसिक आंसर इज एनिमल सेल राउंड होते हैं और सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और उनका सेल क्यूबोइडल और रेक्टेंगुलर होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ प्लांट सेल। In this structure of cell, plasma membrane is present surrounding to the cell and cytoplasm is present. Various cell organelles are present in the cytoplasm and और क्या राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, वेक्यूल, सभी कुछ प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सभी प्रेजेंट है। We'll study about the cell organelles later in this chapter. Let's move forward. देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बैक्टीरिया और ईस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स है और यहाँ पे ये जो यीस्ट है ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यहाँ पे ईस्ट उनका एक वेल डेवलप्ड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। बैक्टीरिया का कोई सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और यहाँ पर यीस्ट का सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। अब चलते हैं सेल डिवीजन की तरफ। सो व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ मदर सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। ये कैसे होता है? मेनली टू प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन. First is cytokinesis, means a division of cytoplasm, and then it is followed by karyokinesis, means division of nucleus. Cell division is of two types, mitosis and meiosis. Mitosis को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस में टू डॉटर सेल फॉर्म होते हैं और डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल हैज। ठीक है, ये जो माइटोसिस है ये सोमेटिक सेल्स में होते हैं और ये जो मेयोसिस है ये गैमेट्स में होते हैं, जिसको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। मेयोसिस से एक रिडक्शनल डिवीजन है। इट फॉर्म्स फोर सेल। न्यू सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द मदर सेल। इतना तक सब अच्छे से गया। तो अब जानते हैं थ्री इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। पहले नंबर पे है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटर कवरिंग है। इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि इट अलाउज मूवमेंट ऑफ ओनली सर्टन सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है साइटोप्लाज्म। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल और यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं या फिर यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। सेल ऑर्गेनल्स सच एज न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, lysosomes, etc. are present in cytoplasms. They are floating over the cytoplasm. अब चलते हैं टू द सेंटर ऑफ द सेल, जहाँ पे कि कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। वो एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल. इट इज consist of nuclear membrane,
न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क। पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है और डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन में न्यूक्लियोपोर्स प्रेजेंट हैं जो कि अदर पार्ट्स ऑफ द सेल के अदर पार्ट से कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। दूसरा है न्यूक्लियोलस। वो एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के सेंट्रल में प्रेजेंट है और इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज अ सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर। इट होल्ड्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमेटिन। सबसे आखिर में है क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये क्या है? न्यूक्लियस contains genetic material in the form of chromatin network. न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल है और वो क्रोमेटिन नेटवर्क के फॉर्म में उसे अपने पास रखता है। क्रोमेटिन गेट फोल्डेड एंड coiled to form chromosomes. एक क्रोमेटिन अनकंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं और वो कंडेंस्ड होके या फिर कॉइल्ड होके क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं। इट इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स like tubules, vesicles, and cisternae. Tubules are tubular in structure, vesicles are sac-like, and cisternae are flattened disc-like structures. So, what is the function of endoplasmic reticulum? It helps in lipid and protein synthesis, and also it provides internal structure or sorry, it provides internal support to the cells. Endoplasmic reticulum is of two types. ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं। एक है SER जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक है RER जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। SER में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं या फिर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उसके सरफेस में, और यहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके सरफेस में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। SER का फंक्शन क्या है? SER का फंक्शन ये है कि लिपिड सिंथेसिस और RER का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। अब आता है राइबोसोम्स। दे आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इवनली इन द साइटोप्लाज्म. It helps in protein synthesis and it is also called protein factories of the cell. क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। फिर है गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी apparatus. It is discovered by Camillo Golgi. It is a membrane-bound sac-like structure called cisternae. It involves in transport of lipids in cells. It also involved in the formation of lysosomes. It also involved in synthesis of cell wall in plant cell. It involves in modification, sorting and packaging of proteins. एक गोल्गी apparatus का इतना सारा functions है और it is important for your exam purpose. Now next is mitochondria. You all know this mitochondria very well, and you also know that mitochondria is the powerhouse of the cell. It helps in ATP synthesis. ATP means energy synthesis. ATP is also called energy currency of the cell. Full form of ATP is adenosine triphosphate. Mitochondria is double membraned and it has its own DNA. एक बात याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड है इन दोनों का अपना खुद का डीएनए होते हैं. It produce energy in the form of ATP. Who? Mitochondria. Now next is lysosomes. इसको भी तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है. Lysosomes are also called suicidal bag of the cell. It helps in phagocytosis. What is phagocytosis? It means the killing or ingesting of foreign materials inside the cell. It helps in protection against foreign substances. It also helps in autocell lysis. It means autocell lysis का मतलब ये है कि अगर एक सेल खराब हो जाता है या फिर कुछ डिसफंक्शन करने लगता है तो ये जो लाइसोसोम है खुद ही बर्स्ट होके उस सेल को completely destroy कर देता है, मार देता है, so that it
can't affect other cells of a body. Other cell organelles है centrosome and cell inclusion. Centrosome has a role in cell division and cell inclusions are non-living substances that are stored in a cell. अब आते हैं कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स के पास जो कि हम में या फिर एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज सेल वॉल. इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. It is the additional protective rigid structure present outside of the cell membrane. ये cell membrane के बाहर present होते हैं और ये protective और rigid या फिर strong होते हैं. This cell wall gives shape and rigidity to the plant cell. It is freely permeable in nature. Unlike cell membrane, which allows movement of only certain substances inside and outside of the cell, ये सेल वॉल जो है फ्रीली परमिएबल है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस फ्रीली सेल वॉल के अंदर या फिर सेल वॉल के बाहर जा सकता है. नेक्स्ट इज वैक्यूल. इट इज द एम्प्टी स्ट्रक्चर इन ए सेल. ये खाली स्ट्रक्चर है सेल के अंदर. प्लांट का वैक्यूल, प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इट इज लार्जर देन एनिमल सेल, यानी कि हम में वैक्यूल, हमारे सेल में जो वैक्यूल है वो छोटे होते हैं. It helps in storage and removal of unwanted debris. ये स्टोरेज में भी हेल्प करता है और कुछ अनवांटेड डेब्रिस को भी रिमूव करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज प्लास्टिड. इट इज द colored part of the plant cell. They are colored bodies in the cytoplasm of leaf cells. It is of two types. First is chromoplast and second is leucoplast. Chromoplasts are colored plastids and leucoplasts are colorless plastids. It gives pigment. Corn plastids give pigment to the cell. हमने देखा कि प्लास्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड है और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है. अब देखेंगे हम क्लोरोप्लास्ट. बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, उनमें से हम दो ही देखेंगे. एक ही कैरोटीन जो प्रोवाइड करता है ऑरेंज कलर टू द प्लांट, और ज़ैंथोफिल जो प्रोवाइड करता है येलो कलर टू द प्लांट. और एक और है जो कि है क्लोरोप्लास्ट. इट इज़ द ग्रीन कलर प्लास्टिड विच कॉन्टेन क्लोरोफिल. और हमारा क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द क्वेश्चन केम and it is the important question for your boards. What is photosynthesis? एग्जाम में तो नहीं आएंगे, पर this is a general or basic knowledge you should know about it. So photosynthesis is a process by which plant prepare carbohydrate type of food by using sunlight, water, chlorophyll and mineral. It is called photosynthesis. So let's move to the next slide. Chloroplast is the kitchen of the cell. This is important for 1 mark questions. And एक और पॉइंट है कि जो कि है, look, plastids contains its own DNA and ribosome, which I have already told. Let us know the difference between plant and animal cell. It is also an important question. First point is on the basis of size. Animal cell is small in size, while plant cells are larger than animal cells. Second point is on the basis of presence or absence of cell wall. So in plant cell it is present, but in animal cell it is absent. Third point is on the basis of shape. Animal cell, animal cell is irregular or round in shape, and plant cell is rectangular in shape. Fourth point is on the basis of presence or absence of the plastid. So as we know कि एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्लास्टिड इज प्रेजेंट एंड यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट के खाना बनाने में हेल्प होता है किसका? प्लास्टिड का. फिफ्थ नंबर इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैक्यूल. वैक्यूल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में इट इज लार्ज प्रेजेंट, एंड इट इज लार्ज एंड इट स्टोर्स water, nutrients and waste products.
Centriole is present in animal cell and it helps in cell division, and centriole is absent in plant cell. एनिमल सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट है पर प्लांट सेल में लाइसोसोम absent है। और एनिमल सेल में जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, बट इन प्लांट सेल एनर्जी इज स्टोर्ड एज स्टार्च। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये है कि animals are heterotropic and plants are autotrophic. So the question is, who are heterotrophs? Those who depend on other organisms for the food, they are called heterotrophs. They are heterotrophic animals or heterotrophic organisms. Those who prepare their own food, they do not depend on other organisms for food, are known as autotrophs. They self-nourish themselves. So that's it for today. If you liked my videos, then do like and share with your friends. If you need any practice question, then let me know. I'll make another video, another special video for that purpose, or I'll send you the link of the PDF. And yes, don't forget to subscribe the channel. Study well.